Okay, so Anirban, let's proceed ahead with your HR for MOIL. Brief introduction from your side. Mm, Good evening. As you know, myself, Anirban Mandal, I belong to Bakuda, West Bengal, but brought up in Bhusawal, Maharashtra. Recently, I post-graduated from IIT Kharagpur in the stream Manufacturing Science and Engineering. Prior Hmm. to that, I worked in the firm SHV Energy Private Limited as a plant engineer. There Hmm. I did, there I had the both managerial and non-managerial tasks. I led a team of 20 members for brushing of cylinders. So before that, I completed my graduation from VNIT Nagpur in the stream mechanical engineering. So there I did both n- both technical and non-technical aspects, such as I was in the club, that is dramatics club, Halla Bol, where we participated in other colleges also doing dramatics, and also had a group project of Supra Baha, where we made a student formula vehicle. My hobbies are listening to music, and in my free time I like to play cricket. Okay, so Anirban, you are graduate of VNIT Nagpur. Yes, sir. So what job did you get after graduation? As a plant engineer in the firm SHV Energy Private Limited. Okay, so how many months or years did you work there? Sir, I worked for 5 months there, but thereafter I went for gate preparation. Hmm. So what was the reason why you did your masters? Basically, I wanted to go for enhancing my skills in the technical aspects. For that purpose only, I went for masters. Hmm. What I thought in after graduating from BTech, that the skills I had, it's enough for the industries. But watching the activities there, I thought that I'm lacking something. So I thought that I should brush up in MTech. Okay, so you said you were in some brushing the cylinders job or something. What job were you Yes, doing? sir. Actually, it was an in-house built uh, paintbrush of the cylinders. Basically, in the firm, we were doing bottling of cylinders. Hmm. That is gas cylinders. Hmm. So there was a task. Either we go for third party to paintbrush the cylinders, or we have to do it in-house. Okay. So we thought about it, and कौन से we सिलेंडर फिलिंग का आपका बॉटलिंग प्लान था? कौन सा सिलेंडर फिलिंग करते थे? LPG cylinder, sir. एलपीजी। LPG. अच्छा, टेल मी वन थिंग अनुपम, जो एलपीजी सिलेंडर फिलिंग है उसमें Yes, sir. क्या चीज कांस्टेंट रहता है? कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है? यू हैव स्टडीड थर्मोडायनेमिक्स? Yes, sir. तो जो फिलिंग प्रोसेस होती है एलपीजी सिलेंडर की, उसमें क्या कांस्टेंट रहता है? I think, sir, it's an isothermal process. आइसोथर्मल, आर यू श्योर? जब अंदर आप गैस भरोगे तो अंदर टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा? Yes, yes, yes. इंटरनल Uh, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी के अंदर? तुम बाहर से कोई नहीं, थर्मोडायनेमिक इंक्रीज हो मैटर रहा है। भेज रहे हो। नहीं, नहीं, हाँ। नहीं, इंक्रीज हो रहा है, सर। हाँ, तो इंटरनल फिर कांस्टेंट क्या रहता एनर्जी है? बढ़े। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, सर। प्रोसेस वॉल्यूम तो सिलेंडर का कांस्टेंट है। हाँ, ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या प्रोसेस। रह रहा है? एडियाबेटिक, व्हाई? एडियाबैटिक, as it is a fast process where we get mm, uh, very less time for mm, uh, sir, I don't recall that much about it. ओके, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी में आपने मैन्युफैक्चरिंग क्या Yes. प्रोजेक्ट किया था आपने? Sir, it was a project based on 3D analysis, where I have to uh, give some process parameters and physical elements to the in the software, Abacus software, of a orthogonal machining process.
अच्छा, माइनिंग दो तरह की होती है MOIL में, ओपन कास्ट होती है और अंडरग्राउंड होती है। सुना है आपने? यस सर, यस सर, माइनिंग के बारे में सुना है? यस सर, यस सर। अच्छा, माइनिंग करते टाइम हम कुछ टूल्स यूज करते हैं उसके डिगिंग के लिए, कौन से टूल्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक सेफ्टी किट होता है, एज इन जस्ट लाइक वी यूज फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। नहीं, वो तो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया ना। यस सर, पीपी। खुदाई के लिए, खुदाई करने के लिए, डिगिंग करने के लिए हम खुदाई कैसे करते हैं माइनिंग में? विद द यूज ऑफ ड्रिल। कितना बड़े साइज की होती है? ड्रिल का साइज कैसे मेजर करते हो अनिर्बन? एक्चुअली ड्रिल साइज सर, the angles are chassis एंगल से साइज थोड़ी मिलता है। sir, I'm not confident about it means right now. आपने मैन्युफैक्चरिंग में क्या कौन सी इसमें किया है स्पेशलिटी? मैन्युफैक्चरिंग में भी तो बहुत सी प्रोसेसेस होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सर इन द कोर्स वर्क सर, उसमें दोनों ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों एस्पेक्ट्स थे सर। बट द कोर्सेस मैंने जो लिए थे वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थे, जस्ट लाइक ग्राइंडिंग, रोलिंग, फॉर्मिंग, ये प्रोसेस के ऊपर ज्यादा मेरे सब्जेक्ट्स थे। इवन माय प्रोजेक्ट भी सर रिलेटेड टू मशीनिंग ही था सर। मशीनिंग किया है ना आपने, तो ड्रिलिंग तो उसी का एग्जांपल है मशीनिंग का। ये सर, बट ड्रिलिंग ऑन द बेसिस, मतलब एक जो हम लोग लैब में यूज करते हैं या वर्कशॉप में यूज करते हैं, और एक जो ड्रिल बिट जो माइंस में यूज किया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। यस, मतलब उनको कैरेक्टराइजेशन करने का दोनों का प्रोसेस सेम होगा, बट ये साइज आर डिफरेंट। ओके ओके, सो आप मेरे को बता सकते हैं मटेरियल क्या होता है टूल का, कटिंग टूल का? कटिंग टूल सर इन जनरल HSS यूज करते हैं, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इन जनरल, बट हार्ड मटेरियल है तो फिर कोटेड मटेरियल भी यूज किए जाते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के कोटेड। आपने टंगस्टन कार्बाइड का टूल देखा है लेथ पे? सर उनके इंसर्ट्स यूज करते हुए देखा है सर। इंसर्ट देखा है बस? यस सर। और हाई स्पीड, वो आपका हाई स्पीड स्टील? यस सर, देखा है सर। उसका भी इंसर्ट देखा है? उसका क्या नहीं देखा नहीं, है? इंसर्ट नहीं, उसका टूल देखा है सर। उसका शैंक देखा है पूरा, राइट? यस सर। क्या रीजन है? HSS का तो शैंक देख लिया, उसका उसका इंसर्ट देखा बस, ऐसा क्यों? HSS का इंसर्ट क्यों नहीं यूज करते और सिरामिक का शैंक की यूज क्यों नहीं करते? सर टंगस्टन कार्बाइड एज इन ब्रिटल मटेरियल है सर, तो अगर हम लोग उसका शैंक अगर पूरा यूज करेंगे तो वाइब्रेशन की वजह से उसमें जो ब्रिटलनेस रहता है वो इजीली ब्रेक हो सकता है। जबकि सर इंसर्ट के फॉर्म में हम उसको बेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट हमको उसको उसके टिप को यूज करना है सर। गुड। और शैंक का टिप यूज क्यों नहीं कर सकते आप HSS का? उसका भी टिप यूज कर लो। सर आई चलो, लेट डोंट मी नो गिव यू अबाउट। द फीडबैक। एक तो ये आपने मशीनिंग किया है ना, तो ड्रिल जो होता है, जो इसमें माइनिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिल का साइज उसके शैंक के साइज से डिसाइड होता है, शैंक का डायमीटर। और बहुत बड़े बड़े साइज का ड्रिल यूज करते हैं, वो आप थोड़ा माइनिंग पे पढ़ो, आप यूट्यूब वीडियो देखो माइनिंग करते कैसे हैं। MOIL वाला बंदा है ना, तो माइनिंग में इंटरेस्टेड होगा वो, उसको तो तुम मिलोगे ड्रिल वाला आदमी है, मैन्युफैक्चरिंग वाला आदमी है। और जैसे तुमने बोला कि मैंने वो उसमें मैंने फिलिंग इस पे काम किया है, हाँ, यस सर। तो सिलेंडर फिलिंग, वो पहला क्वेश्चन उसको आएगा कौन सी प्रोसेस होती है, फिलिंग जो प्रोसेस है कौन सी प्रोसेस होती है, राइट? वो आप जो भी मुंह से बोलोगे वहां से क्वेश्चन पूछता है आगे, जो भी तुम मुंह से बोलोगे। वो नॉलेजेबल लोग बैठे होते हैं ना, वो जैसे तुम बोलते जाओगे वो तुम्हारा इंजीनियर अंदर से निकालेगा कि देखता हूँ इसका इंजीनियर है कि नहीं। जैसे टूल बिट वाला क्वेश्चन था, यस सर। टंगस्टन कार्बाइड जो होता है वो ब्रिटल होता है, बड़े साइज का ब्रिटल टूट जाता है। यस सर। और छोटे साइज जो उसमें वियर एंड टियर नहीं होती,
सिरेमिक है ना, उसमें वियर एंड टियर नहीं होता, हार्ड होता है बहुत होता है। लेकिन हाई स्पीड स्टील का जो टूल है वो वियर एंड टियर होता है, फिर उसको दोबारा से ग्राइंड करते हो, शार्पन करते हो उसको। यस सर, यस सर, हाँ ड्रेसिंग। हाँ, वो ड्रेसिंग करते हैं उसकी, तो इसलिए वो शैंक होता है, तो उसकी पूरी ड्रेसिंग करते हैं। और चीप भी होता है वो, टंगस्टन Yes, कार्बाइड yes. महंगा होता है। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि इस लड़के को पता भी है जो इसने किया, क्यों किया है, Okay, राइट। वो ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इंटरव्यू की तैयारी का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। okay, sir. वो पूरी इंजीनियरिंग पूरा सब निकाल लेगा तुमसे, राइट। Yes, ऐसे sir. तुम्हें करना है, तो लगाओ अभी और एचआर वगैरह लगाते रहो, और आपके बिल्कुल एचआर सर, में मैं टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, राइट। बिल्कुल सर। ओके अनिल।